چونکہ تقریر صرف گورنر صاحب کی ہونی ہے. اب میں ملتمس ہوں پاکستان پیپل پارٹی صوبہ پنجاب کے سینئر نائب صدر، سابق مشیر وزیر اعظم پاکستان، مشیر برائے امور نوجوانان منسٹری آف پاکستان، سابق صدر پنجاب یوتھ PSF، نائب صدر پیپلز پارٹی پنجاب، اور جن کو یہ اعزاز اور شرف بھی حاصل ہے کہ شہیدہ پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو جب لاہور تشریف لاتی تو وہ جن کو اپنا چھوٹا بھائی کہتی تھی ان میں ایک میاں ایوب صاحب کا بھی نام تھا. آپ تشریف لاتے ہیں اور انتہائی اختصار کے ساتھ وہ جانتے ہیں گورنر صاحب کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق ہے کہ ان کی کتنی مصروفیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب، علامہ مفتی سید عاشق حسین صاحب، پیر ناظم حسین شاہ صاحب، کیونکہ میزبان نے کہا کہ وقت کم ہے تو اتنے قائدین بیٹھے ہیں، اگر سب کے نام لوں تو ٹائم ہی ختم ہو جائے گا. تو محترم حاضرین و سامعین، ہم جس عظیم مقصد کے لیے آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ ختم نبوت کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو ختم نبوت کا مسئلہ جہاں پہ ہمارے ایمان کا اہم جز و حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ آخری نبی اور خاتم النبیین ہے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ختم نبوت کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کا حصہ بنانا چاہیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے لیے بہت کام کیا. دنیا کے عظیم رہنماؤں میں ان کا نام شامل ہوتا ہے. 1974 میں انہوں نے جب قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا، جب انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، تو اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمان کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو شہید نے جتنے بھی کارنامے انجام دیے ہیں ان میں ختم نبوت کا کارنامہ ان کے لیے باعث جنت بنے گا. جہاں پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو آئین دیا، پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی دی، پاکستان کو ID کارڈ دیا، پاکستان کو پاسپورٹ دیا، اور 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کرائی. ان سب سے بڑھ کے ختم نبوت کا جو فیصلہ انہوں نے تاریخی کیا بھٹو صاحب نے، اس سے پاکستان کا اسلامی تسخط بلند کیا اور پاکستان اور اسلامی نظریات کی حفاظت کی. وقت کم ہے، بس میں ایک نعرہ لگواؤں گا، آپ نے میرے نعرے کا جواب دینا ہے. غلام ہے رسول کے غلام، غلامی رسول میں موت بھی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں. شکریہ. میڈیا کے تمام نوجوانان کا اور برخداران کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص میاں شہباز صاحب کا. میاں شہباز صاحب کوہ نور کو لیڈ کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ گورنر پنجاب کی خبر ہو یا پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کی، اسے ہمیشہ ہیڈ لائن دیتے ہیں. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور اب میں ملتمس ہوں چودھری اختر عباس صاحب سے، کیونکہ آج کے منتظمین میں ہیں، وہ 1 منٹ کے لیے صرف سلام پیش کریں. جی السلام علیکم. ہم تمام دوستوں کو سردار سلیم حیدر صاحب گورنر پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے رونق بخشی اس محفل کو. مفتی عاشق حسین، سید ناظم حسین اور دیگر تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ صرف آج میں ایک نعرہ ہی لگوانے آیا ہوں تاکہ محفل جو ہے اس شہید ختم نبوت ذوالفقار علی بھٹو شہید ختم نبوت کو خراج تحسین پیش کریں، اور سب لوگ مل کے پورا حال پوری طاقت سے پورے زور سے نعرے کا جواب دینا ہے. جب تک سورج چاند رہے گا، مزہ نہیں آیا، پورے زور سے لگائیں. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. شکریہ، جزاک اللہ. اب میں ملتمس ہوں آج کی اس تقریب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں علامہ سید افتخار حسین ندوی صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں تو اس تقریب کا قرض ہمیشہ میرے پہ رہے گا.
جنہوں نے سب سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اس عظیم کارنامے پر مفتی لیاقت علی صدیقی صاحب، جمیل خان صاحب، یہ کارڈ گورنر صاحب کو پیش کیا اور گورنر صاحب نے اس کارڈ کو بوسہ دیا، کہا کہ یہ میرے پاک نبی کے ختم نبوت کا کارڈ ہے جس پہ دل و جان سے ہم قربان ہیں۔ اور یقیناً میرا دل تھا کہ ابو حافظ ہم غیاث الدین صاحب سے جو 7 مرتبہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن جیت چکے ہیں، مگر گورنر صاحب کے پیچھے میٹنگ شروع ہو چکی ہے، اب پیر سید ناظم حسین شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں، استقبالیہ دیں گے۔ مگر ایک بات کہ پیر صاحب، جنرل شفاعت اللہ شاہ صاحب جی، کوئی نہیں، جنرل شفاعت اللہ شاہ صاحب کور کمانڈر لاہور رہے نا گورنر صاحب، میری ان سے ملاقات ہوئی 15 سال بعد، تو میں نے کہا جنرل صاحب حاضر سروس کا اور ریٹائر کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی حاضر سروس ہو تو تنخواہ ملتی ہے، یونیفارم ہم نے پہنا ہوتا ہے اور سرکاری پروٹوکول ہوتا ہے، اور میں نے کہا جی وردی بھی حاضر سروس کا نام ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم آپ ریٹائرڈ نہیں ہوئے، آپ ریٹائرڈ نہیں ہوئے گورنر صاحب۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا آپ نے صوبیدار سے لے کر سپاہی تک ان غریب بچوں کے لیے ٹیکنیکل کالج بنایا تھا، اس کے پہلے کنونشن کو آپ نے کور کمانڈر کی یونیفارم پہن کر مالی کے بیٹے کے ساتھ جو تصویر بنوائی تھی نا جی، میں 17 سال بعد اس مالی کے گھر گیا ہوں تو آپ کی یونیفارم میں تصویر لگی ہوئی تھی، آپ نے تو آج بھی یونیفارم پہن رکھی ہے، تو یقین جانیے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ گورنر صاحب یہ چند لمحے آپ کے، یہ لوگوں کے گھروں کی ہمیشہ آپ کی یاد دلاتے رہیں گے، آپ کی رونق رہے گی۔ ہم نے کچھ شیلڈیں بنائی ہیں خدمت انسانیت ایوارڈ کے نام سے، پیر صاحب قبلہ کے استقبالیہ کے بعد شیلڈیں صرف یہاں 2 ہی ہوں گی اور اسی کو سارے ہاتھ لگاتے جائیں گے اور پیچھے ہٹتے جائیں گے، جس بندے کو بلایا جائے صرف وہی اسٹیج پر آئے۔ گورنر صاحب فرماتے ہیں کہ میں شیلڈیں ضرور دے کے جاؤں گا مگر آخر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی عاشق حسین کی اس تقریب کی کاوش اور علماء اکرام جو یہاں تشریف لائے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وقت بڑا کم ہے، پیر ادریس شاہ زنجانی نے بڑی اچھی خوبصورت تقریر تیار کی تھی، مگر بہت ہی قلیل وقت ہے، اور آپ کے اور ہمارے سب کے محبوب گورنر جب باہر مفتی صاحب نے کہا کہ بڑا رش ہو گیا، رش نہ کرو، انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ فقیر تو سارا دن 5-5 ہزار لوگوں کو ملتا ہے، تو یہ 400-500 لوگوں کو ملنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور آج جو مشن ہے ذوالفقار علی شہید کا، جنہوں نے ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا، اور ان کی شہادت کے بعد ایسے ہی کسی نے کہا اس دج سے کوئی مقتل کو گیا، یہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ اور کسی نے کہا کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا لوگو، یہ کس کو تم نے سرے دار کھو دیا لوگو۔ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، مگر یہ جو مسئلہ انہوں نے حل کیا، حضرت قبلہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو یہ مسئلہ ختم نبوت کا حل کرے گا، میں اپنی داڑھی سے ان کا پاؤں اور ان کی جوتی صاف کروں گا، اور یہ مسئلہ آپ نے حل کیا۔ اس پر جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے ذوالفقار شہید کو، اور کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ علماء کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے مجھ محمد کا نور بنایا، اور شعور اس وقت تھے جب نہ آفتاب کی ضیاء پاشیاں تھیں، نہ مہتاب کی نور افشانیاں تھیں، نہ پرند و چرند کی پکار تھی، نہ کروٹ لیل و نہار تھی، نہ کوئی ساقی تھا، نہ کوئی پیمانہ تھا، نہ یہ نیل گو آسمانی شامیانہ تھا، نہ جن و انس تھے، نہ ارض و فلک تھے، نہ حیوانات تھے، نہ نباتات تھے، نہ جمادات تھے، ایک وہ بنانے والا تھا، ایک یہ بننے والا تھا، وہ قادر تھا، یہ اس کی قدرت بنا، وہ خالق تھا، یہ اس کی مخلوق بنا، وہ رحیم تھا، یہ اس کی رحمت بنا، وہ اللہ تھا، یہ نبی اللہ بنا، اور وہ لا الہ الا اللہ تھا، یہ محمد رسول اللہ بنا۔ یہ تو ہمارا سب کا ایمان ہے، اور وقت کا
जो अपने दामन में समेटना चाहता हूँ। और फिर खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि जुल्फ़कार अली शहीद के मिशन को हमारे भाई गवर्नर पंजाब जिस तरह लेके चल रहे हैं इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। सारा दिन लोगों को मिलते हैं मगर वसाइल गवर्नर के जितने होते हैं उससे ज़्यादा वो इस्तेमाल करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मैं ख़ुद भी तोहफ़त लेके बिलावल साहब से कहूँगा कि एक फ़कीर सुबह से शाम तक काम करता है, तो जब हमारी पार्टनरशिप है तो उनसे अपना हिस्सा लें मुलाजमतों का, ट्रांसफ़रों का, और वो गवर्नर साहब के सबूत करें ताकि ये कारकुनों को, उलमा को, जहाँ जहाँ भी मुफलस और बेकार लोग हैं बेचारे, उनकी खिदमत कर सकें। मैं आखिर में सब दोस्तों का और खुसूसन मुफ्ती आशिक हुसैन का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम उलमा कराम का जो तशरीफ़ लाए। और ये महफ़िल ये सवाब की महफ़िल है, हजूर का नाम लेना ही जामी कहता हज़ार बार बशोयम दहन से गुश को गुलाब हनूज नाम से गुफ्तन कमाल बेद दी। आपका तो नाम ही लेना जो है अगर इसको दाखना की, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम जनाब मुफ्ती आशिक हुसैन साहब ने आज जो महफ़िल जमाई है, मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए एक ऐसा ज़िंदा जागता सवाब दारैन है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। और बहुत दुआएं करें कि ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान हमेशा ज़िंदा रहे। और गवर्नर साहब ने आके जो हमें इज़्ज़त बख्शी है, मैं अपनी सिंध की सरज़मीन से जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की लाड़काना से और सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इस कारनामे को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपको। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, इससे बेशतर के गवर्नर साहब तशरीफ़ लाएँ। जिस शहीद के नाम से गवर्नर साहब के बिला आज की तकरीब का इनेकाद है, उलमा जानते हैं गवर्नर साहब शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने एक जुमला कहा था, अल्लामा ज़ुबैर बिग साहब, उन्होंने कहा था कि ख़त्म नबूवत के रास्ते में रुकावट के लिए मुझे कोई 2 लाख दे, उसको 2 लाख की बड़ी कीमत थी, 2 करोड़ दे, 2 अरब दे, सारी कायनात भी दे दे। तो मैं चूँकि जुल्फ़कार अली भुट्टो एक मिस्टर आदमी थे, तो उलमा की जो इस्तिलाहात हैं वो ज़रा उनको नहीं आती थी, तो उन्होंने नालैन के बजाय कहा मैं मोहम्मद की जूती पे कुर्बान कर दूँ सारी कायनात। उस शहीद के लिए आज का ये सेमिनार उनकी यादों को ताज़ा किए हुए। ये सुनिए जुल्फ़कार अली भुट्टो खुद क्या कह रहे हैं, बताइए। दूसरा क्लिप जी, वो जो 2 अरब दो सारी कायनात कहते मैं मोहम्मद की जूती पे कुर्बान कर दूं अलैहिस्सलाम। तीसरा क्लिप जी, वो कहते हैं एक मैं हूं और एक आप हैं। चौथा क्लिप जी, चौथा क्लिप खत्म नबूवत के हवाले से। ये शहीद का आखिरी खिताब है जी। अगला क्लिप जी, अगला क्लिप जी। गवर्नर साहब हम हैं मस्जिद के महराब और मिंबर के बंदे, मगर हमें पाकिस्तान के हवाले से जो है ना वो मोहब्बत ईमान की तरह है। आइए जनाब, यकीनन आज गवर्नर साहब ये जितने आबाब बैठे हैं ना जी, अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती हों, मौलाना अब्दुल रब्ब अमजद हों, मौलाना कारी आज़म साहब हों, मौलाना अब्दुल सत्तार न्याज़ी साहब हों, मैं किस किस का नाम गिनवाऊं। बस यही कहूँगा जो इकबाल ने कहा था। इकबाल ने कहा था हाजी अजीज़ रहमान चंद साहब तशरीफ लाए, और हालांकि चंद तो बड़ी जल्दी चढ़ आता है, मगर हम तो इनकी राहों को तकते रहे। शाह साहब किबरा ने एक कुर्सी रिजर्व कर रखी थी कि मैं बैठूँ न बैठूँ, अजीज़ रहमान चंद साहब जो है वो गवर्नर साहब के साथ बैठे। तो गवर्नर साहब के साथ तो ये ऐसे होते हैं जैसे सागर सिद्दीकी ने कहा था कि साए की तरह तेरा साया साथ रहा, साए की तरह
तेरा साया साथ रहा, हमने तो तन्हाई भी कभी तन्हा न गुजारी, लोग हमें लाख कहते रहे ये तो हैं शख्सियत के पुजारी, है जी। तो यकीनन इस संगत साथ में मैं समझता हूँ आज की तकरीब जो है इसके इनेकाद का अपना चौधरी परवेज मसीह साहब, इसका क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान के शहदा को भी जाता है। पाकिस्तान के इन नौजवान बच्चों ने फितना खवारिज के खात्मे के लिए जिस तरह अपनी जानों का नजराना देने का तसलसल कायम कर रखा है, आज यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हम पुरअमन फजा के अंदर, पुरअमन माहौल के अंदर ये सेमिनार मुनाकिद कर रहे हैं। इसका क्रेडिट इसकी गलियों के शहीद पाकिस्तान पुलिस के नौजवान हो या अफवाज पाकिस्तान के जवान जो फितना खवारिज के खात्मे के लिए सरबकफ होकर ये नारा लगाते हुए निकले हैं कि मैं सरबकफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे, मसलहत न सिखा मुझे किसी मसलहत न सिखा नारवा से मुझे। अब आइए मैं गवर्नर साहब को बुलाने से कबल जिस शहीद के लिए पीर सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब के हुक्म पर हमने दिन रात एक किया, गवर्नर साहब आपकी नज़र पाकिस्तान टूट जाने के बाद लड़खड़ाते पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। सुनते जाइए, पाकिस्तान से याया खान के मनहूस मार्शल लाई असरात का खात्मा किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। बेआईन पाकिस्तान को, पाकिस्तान टूट चुका था, कोई आईन नहीं था। ये मोहतरम इसरार मलिक साहब जो अटार्नी जनरल है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं वो बता सकते हैं कि बेआईन पाकिस्तान को 1973 का मुतफ़िका आईन दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और आलम इस्लाम को तागूती और साम्राज्यी कुव्वतों के खूनी पंजों से आज़ाद कराने के लिए दुनिया को तीसरी दुनिया का शऊर दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। 1974 में पंजाब के दारुल खिलाफा इसी शहर लाहौर को जिसे दाता की नगरी कहा जाता है, आलम इस्लाम के तमाम हुक्मरानों को यहाँ मुत्तहिद करके इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। अल्लामा इकबाल के दामन में बादशाही मस्जिद के सहन में शाह फैसल शहीद की क़यादत में इमाम सलातीन मौलाना डॉक्टर अब्दुल कादर आज़ाद साहब को आलम इस्लाम के मनसब इमामत पर फाइज किया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। अफवाज पाकिस्तान के 32,000 जवान और दीगर जो 68,000 बनते हैं सिविलियन, 90,000 कैदियों को भारत की कैद से आज़ाद करवाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। बगैर जंग लड़े हजारों मुरब्बा मील रकबा इंडिया के साथ, भारत के साथ इंदिरा गांधी को टेबल पर शिकस्त देकर पाकिस्तान का इलाका आज़ाद करवाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और सरमायादार में गरीब की हिस्सादारी का ऐलान किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। सबसे बड़ा दूसरा कारनामा 90 साला मसला कादियानियत को जिसके लिए जंग मौता में 1200 हाफ़िज़ कुरान सहाबा ने अपनी जानों का नजराना देकर नबी के खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद रखी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस बुनियाद को तकमील बख्शी। इसलिए आज ये सेमिनार जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़राज तहसीन पेश करने जा रहा है। अब तशरीफ लाते हैं गवर्नर पंजाब, मगर इस इकबाल मैं इस इकबाल के शेर के साथ गवर्नर साहब कि आपके मुतालिक जो इकबाल ने कहा था वो कहा था कि निगाह बुलंद, एक तवज्जो कीजिए, निगाह बुलंद सखुन दिल नवाज जहां पुरसोज यही है रखते सिफर, मीरे कारवां के लिए, मीरे पंजाबे कारवां के लिए इसकी उम्मीदें कलील, इसके मकासद जलील। गवर्नर साहब की इसकी उम्मीदें कलील, इसके मकासद जलील और इनकी अदा दिल फरेब, ये अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, इनकी अदा दिल फरेब, इसकी निगाह दिल नवाज, नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जुस्तजू, रज़्म हक को बातिल हो तो ये फौलाद है मोमिन, ओ हल्का यारा तो बरेशम की तरह है मेरा गवर्नर। जनाब तशरीफ लाते हैं इज्जत माब गवर्नर पंजाब, फादर ऑफ पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब, जिनके लिए आखिरी इकबाल का मैं ये कहूँगा, इकबाल कहता है कि बंदा फितरत के मकासद की करता है नगेबानी, या बंदा है सहराई या ये मर्द कोहिस्तानी। जनाब गवर्नर पंजाब जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हो जी मुफ्ती साहब जी। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुफ्ती आशिक हुसैन साहब जिंदाबाद जी, ज़बरदस्त। आपको बहुत खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने हमारे शहीद कैद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद में और उनके इस अजीम कारनामे को खराज तहसीन पेश करने के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम का इनेकाद किया। स्टेज पे बैठे हुए उलमाए कराम, पीराने कराम, सियासी शख्सियात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, मेरे सामने बैठे हुए काबिल एहतराम शख्सियात, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी बेटियां, बहनें, सब आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपके आने की वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला।
मुफ्ती आशिक हुसैन साहब ने ये जो प्रोग्राम रखा, बड़ी मोहब्बत, बड़े प्यार, बड़े अकीदे से, जब से मैं गवर्नर बना ये तवातर से मुझे ये कह रहे थे कि मैंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद में खराज तहसीन का ये प्रोग्राम रखना है। और मेरी तरफ से देरी हुई कि 7-8 महीने इसको लग गए, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, ये थके नहीं। तो मैं समझता हूँ कि मुफ्ती आशिक हुसैन साहब का मैं भी शुक्रगुजार हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपकी शुक्रगुजार है कि आपने बड़ी मोहब्बत से शहीद कैद के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। भुट्टो, क्योंकि मैंने आपको थकाने की पूरी कोशिश की 7-8 महीने, लेकिन आप थके नहीं। और मैंने स्टेज पे भी देखा कि आपका वो जोश और जज्बा उल्टा बुलंद हो गया। अभी 2-4 शेर आप और पढ़ते तो यकीनन मेरे अगले सारे प्रोग्राम जो है वो रह जाने। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम सियासी शख्सियत थे, सियासी लीडर तो वो हमारे सामने थे ही थे। और ये भी मैं कहता हूँ कि देखें, ये पीपल्स पार्टी इतनी काबिल रहम है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए तो उन पे वो इल्ज़ामात लगे, उन्हें जिन्होंने मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला हल किया, उनको कहा गया कि ये मुसलमान ही नहीं है, ये फाशिस्ट है, ये फलाना है, ये फलाना है, लोगों के ज़हनों को ख़राब करने के लिए। वही तवातुर से चलता रहा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद आई, उन पे इल्ज़ामात लगे। अभी शहीदों के वारिस बिलावल भुट्टो सियासत में आए तो उन पे वो इल्ज़ामात। इन इल्ज़ामात की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिनको कहा गया कि इनका इस्लाम से तल्लुक़ ही कोई नहीं है, और पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, इस्लाम की तारीख़ में बहुत बड़ा कारनामा है कि पूरी दुनिया में आप देखें तो शायद वैद पाकिस्तान है कि जहाँ पे दुश्मनाने रसूल को काफिर करार दिया गया। और वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये हिम्मत की। बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े तकड़े हमारे जिन्होंने क़यादतें की, वो ये जुर्रत नहीं कर सके। उन्हें ये पता था कि जिस दिन उस पर साइन होने हैं, उस दिन अपनी जो है वो मौत के परवाने पे साइन होने हैं। तो वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम लीडर थे कि उन्हें पता था, और जो उनके पास खड़े थे उन्होंने ये बताया कि शहीद ने कहा कि ये जो मैं कादियानियों को काफिर करार देने वाले बिल पे साइन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये मैं अपने मौत के परवाने पे साइन कर रहा हूँ। तो उस शहीद को जितना भी खराज अकीदत पेश की जाए वो कम है। और मेरी कोई दूसरी राय नहीं एक मुसलमान होने की हैसियत से कि वो आज भी जन्नत में बैठे हमें देख रहे हैं। और जब हम जाएंगे क़यामत वाले दिन तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंशाअल्लाह जन्नत में हमारा इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि इससे बढ़ के कोई बात है ही नहीं। इश्क़ रसूल में उन्होंने शहादत बर्दाश्त की। वो जो फांसी के फंदे पे झूले, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी। और फिर जो कहते थे कि ये मुसलमान ही नहीं है, मुसलमानों के लिए देखें उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, वो भी एक वजह थी उनकी शहादत की। उन्होंने यहाँ शराब पे पाबंदी लगाई। तो वो एक अजीम लीडर थे, और हम बदकिस्मत कौम हैं कि हमने उस अजीम लीडर को अपने हाथों से फांसी के फंदे पे झुलाया। और आज पाकिस्तान की हालत ये है कि हम कशकोल रहे के रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो जाते हैं, बिल्कुल पीपल्स पार्टी से हट के एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से पाकिस्तान की तारीख पे नज़र दौड़ाएं और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उन पौने 5 साल को देखें। मैं दावे से कहता हूँ कि उन पौने 5 साल को पाकिस्तान की तारीख से माइनस कर दिया जाए तो ना कोई दिफा में आपके पास कुछ बचता है, ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हम पढ़ते हैं और हम कहते हैं हम इस्लामी मुल्क हैं, ना उसमें हमें कुछ बचता है, ना पाकिस्तान की तरक्की में कुछ बचता है। अगर वो मैं गिनवाना शुरू करूं तो यकीन करें कि उसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम लीडर थे, और उन्होंने जो
पूरे मुस्लिम उम्मा पे ये एहसान किया, दुश्मनाने रसूल को जो काफिर करार दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं पीपल्स पार्टी से हट के भी। और पीपल्स पार्टी की वसासत से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमेशा के लिए ख़त्म नबूवत के मसले को जो है वो पाकिस्तान में हल किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहरेदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहरेदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद खत्म नबूवत जिंदाबाद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद खत्म नबूवत जिंदाबाद। और आज भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, अल्लाह के फजलो करम से, हम पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस खत्म नबूवत की पारेदार है। हमारा एक एक वर्कर, एक एक लीडर, गवर्नर पंजाब जिंदाबाद। एक एक वर्कर, एक एक लीडर अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस पार्टी के होते हुए किसी की जुर्रत ही नहीं है कि वो खत्म नबूवत पे कोई कदगन लगा सके। अल्लाह के मैं बसीयत गवर्नर आपके सामने ये हाथ खड़ा करके कहता हूँ कि जहाँ पे इज्जत रसूल का मसला आएगा, मैं अपना तान मान धन सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन उस पर कॉम्प्रोमाइज। मर्दे दुर्वेश गवर्नर पंजाब, मर्दे दुर्वेश गवर्नर पंजाब, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। नजीर साहब और लो फिर हम तक। तो हर मुसलमान पे इसको खत्म नबूवत का जो मसला है, इस पे ज़रूर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इसमें साजिशें होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे साजिशें होती हैं और कोशिश की जाती है कि इसमें कोई कंप्रोमाइज़ हो। लेकिन जब तक एक भी रसूल खुदा से मोहब्बत करने वाला, एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला असम्बली में मौजूद है, तो इंशाअल्लाह उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। और मेरी क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में, जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह कभी भी सोच ही नहीं सकती, हमारे ज़हन के किसी कोने में ये सोच नहीं आ सकती कि हम उस पर कंप्रोमाइज़ हों। खुदा न खास्ता अगर ज़रा से भी हमारे ज़हन में ये आए तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी का वो आखिरी दिन है, क्योंकि इज़्ज़त रसूल से बढ़कर किसी मुसलमान के लिए कोई नहीं है। और हम इस ख़त्म नबूवत पे और इज़्ज़त रसूल पे उसको सियासत में लेके नहीं आते। हम आपसे इसकी डिमांड नहीं करते कि आप हमें इस ख़त्म नबूवत पे जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, या आज पीपल्स पार्टी उस पर स्टैंड कर रही है, तो हाँ आप हमें उस पर वोट दें। नहीं, हमें वोट नहीं चाहिए उस पर हमें वोट की ज़रूरत नहीं है। इसका अजर हमें क़यामत वाले दिन रसूल खुदा खुद देंगे। और हम इस छोटे से अजर के लिए जो है उसका सौदा नहीं करना चाहते। इसीलिए हमें कहा जाता है कि जी आप जो है सियासी जलसों में, इलेक्शन में उस पर उस तरह बात नहीं करते। देखिए हम उस पर बात करते हैं, अभी आपके सामने बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कल कोई इलेक्शन नहीं है कि मेरी कोई नीयत इस पे चली जाए कि मैं वो पाक रसूल का जिक्र करके और आपकी जो एक रसूल खुदा से जो अकीदत है, मोहब्बत है, उसको कैश कराऊं और आपसे पीपल्स पार्टी के लिए वोट मांगूं। मेरा अल्लाह गवाह है कि हमारी कभी न ये ख्वाहिश है, न कभी हम इस पे वोट मांगने के लिए तैयार हैं। और माशाअल्लाह हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस ख़त्म नबूवत के मसले को हमेशा के लिए ख़त्म किया। आज पूरी पाकिस्तानी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला 5-6 साल का बच्चा भी अल्लाह के फजलो करम से उसका पायरेदार है। और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि मैं गवर्नर के ओहदे पे बैठा हूँ, लेकिन इज़्ज़त रसूल के लिए मैं ये ओहदे अपना जान माल हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। और ये मसला अल्लाह के फजलो करम से हमेशा के लिए ख़त्म है। और मुफ्ती आशिक हुसैन साहब, आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने हमारे शहीद कैद के लिए इतनी मोहब्बत से ये जो प्रोग्राम का इनकाद किया,
पीर नाज़म हुसैन शाह साहब हमारे पीर भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, बड़े मुखलिस और बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान भी हैं। उनकी सरपरस्ती में पीर असलम शाह साहब और उलमाए कराम और पीराने अज़ाम बहुत सारे बैठे हैं। सबसे माजरत के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह हम मिल के पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए, और ये जो ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो बर्निंग इशू हैं जिनमें हमारा जो है हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हमने ये भी ख्याल करना है कि अगर कोई उस इशू को नाजायज़ तौर पे उठा के और हमारी उस दुखती राग को छेड़े और वो ये कोशिश करे कि हमारे हाथों से हमारे मुल्क का नुकसान हो, तो हमने वो नहीं करना, क्योंकि ये मुल्क दुनिया का वैध मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, और इसी मुल्क ने इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस्लामी दुनिया को लीड करना है, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर और कोई इस्लामी दुनिया में मुल्क ऐसा है नहीं। और अल्लाह के फजल करम से जो हमारी तवक्कुआत हैं, इंशाअल्लाह अगले 2, 3, 4 साल में चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, और जो लोगों की ख्वाहिश है कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है जी उस मकाम पे पहुँचे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कोलेशन गवर्नमेंट से और आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में उन्हें अल्लाह ने जो विजन दिया है सबको साथ लेके चलने का, इंशाअल्लाह ये मुल्क उस पोजीशन पे पहुँचेगा, और फिर वहाँ पे हम जाएंगे कि हम कर्जा लेने वाले नहीं, इंशाअल्लाह कर्जा देने वाले हैं। और अगले पाकिस्तान और अगले 5 साल में अगर इसी तरह स्टेबिलिटी चलती रही तो आपको इंशाअल्लाह, ये मेरी बातें आप याद रखें, आपको इंशाअल्लाह नज़र आएगा। आखिर में मीडिया का बहुत शुक्रिया, उलमाए कराम का, पीराने अज़ाम का, आए हुए सारे मेहमानों का शुक्रिया, और स्पेशली मैं मुफ्ती आशिक हुसैन साहब आपको सलूट करता हूँ, क्योंकि आपने हमारी जो अपना दिलों की धड़कन है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको याद किया, उनके अजीम कारनामे को याद किया। बहुत शुक्रिया, बहुत अब चौधरी आदर साहब, चौधरी आदर सबूत, चौधरी आदर सबूत। ये जिसका नाम पुकारा जाए, गुजारिश है कि सिर्फ वही दोस्त स्टेज की जीनत बने, बाकी दोस्त अहबाब। चौधरी शफीक गुजर साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं। चौधरी शफीक गुजर साहब। भट्ट साहब तशरीफ ले जाओ। मोहतरम शहजाद भट्टी साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लें। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती सियालवी साहब तशरीफ लाए, आपको खुशामदीद कहूँगा। साहबजादा अहमद इकबाल चिश्ती साहब, मैं देख रहा हूँ कि आप